Good morning, children. How are you? I hope you all will be good and safe. Children, now these days I am telling you about the chapter ratios. Already I have covered two types of ratios with numerical or theoretical portion, which was liquidity ratio and solvency ratio. So, children, according to liquidity ratio, we find the ability of the firm to pay its current liabilities in time. These ratios are two types, current ratio and quick ratio. Second, solvency ratio, meaning the ability of the firm to pay its long-term liabilities in time. These ratios are the types debt to equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio and interest coverage ratio. So children, these all the ratios I have already I had explained with the numerical questions with example. So today I am explaining third type of ratio, activity ratio or turnover ratio. So let's start. These ratios indicate the speed at which activities of the business are being performed. The activity ratio expresses the number of times. So according to activity ratio, we express all the values in times. Assets employed or for that matter, any constituent of asset is turned into sales during an accounting period. Higher turnover ratio means better utilization of assets and signifies improved efficiency and profitability, and as such are known as efficiency ratios. So first of all, I have to explain the particular meaning of activity ratio and turnover ratio. So it indicates the operational efficiency of the business firm. The better the management of resources, the larger is the amount of sales and the profit. These ratios are usually calculated on the basis of net sale, revenue from operation or cost of goods sold, cost of revenue from operation. Higher turnover ratio mean better use of resources or capital. So children, according to activity ratio or turnover ratio, in this ratio we have to calculate that how the firm has utilized his resources in properly or not. This result will be increase और decrease. तो यहाँ पर एक्टिविटी रेशियो में जो फर्म है वो ये कैलकुलेशन कर रही है कि जो भी हमने ऑपरेशनल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर की है उनका रिजल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, हमारे जो पास रिसोर्सेज थे उनका हमने फुलर और बेटर यूटिलाइजेशन किया या नहीं, और उसका रिजल्ट एज ए टर्नओवर रेशियो हमारे पास कैसा है, और उनको हम कंपैरिजन करेंगे इन आर प्रीवियस ईयर। जब हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो सेल्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस है, हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, इनकम जो है वो जनरेट हो रही है इनकम, वो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंडिविजुअल कैसी है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। It has two types, opening stock and closing stock. When we start our accounting year, that stock called opening stock, and when we will ending the session, that is called the closing stock. तो जब हम अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, हमारे पास वहाँ पर जो कुछ भी जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है या सेमी फिनिश गुड है, किसी भी तरह का अगर हमारे पास गुड्स है तो उसे हम ओपनिंग स्टॉक में स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन में स्टार्ट, दैट इज़ कॉल्ड द ओपनिंग स्टॉक। और जब हमारा ईयर एंड हो जाता है, हम अपने एंडिंग ईयर पे पहुंच जाते हैं और उस टाइम पर जो भी हमारे पास स्टॉक रिमेन बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री टर्नओवर के रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि टर्नओवर जो हमारे पास रेशियोज़ हैं, एक्टिविटी जो रेशियो है, दीज रेशियोज ओनली शो द टाइम्स, कि यहाँ पर जो भी हमारे पास परफॉर्मेंस एक्सप्रेस होंगे नंबर, वो नंबर्स इन टाइम में परफॉर्म होंगे। It determines the number of times inventory is converted into revenue from operations during the accounting period under consideration. It expresses the relationship between the cost of revenue from operation and average inventory. The formula for its calculation is as follows. So first, the meaning is inventory
turnover ratio. It shows the relationship between the cost of goods sold during a given period and the average inventory carried during the period. It also called stock turnover ratio. This ratio measures how many times the average inventory is sold during the year. So we calculate inventory turnover ratio is equals to cost of revenue from operation upon average inventory is equals to time. So cost of revenue from operation can be calculated revenue from operation minus gross profit or opening inventory plus net purchases plus direct expenses assumed to be given minus closing inventory, or cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus change in inventory, finished goods, work in progress and stock in trade plus direct expenses assumed to be given. Average inventory can be calculation with the help opening inventory plus closing inventory upon 2. Significance: by comparing the inventory turnover ratio of current year with that of the previous year, the management can assess whether inventory has been more efficiency used or not. So first I will explain a numerical question. Inventory और स्टॉक टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू मीन्स इनकम, कि हमारे पास जो भी यहाँ पर इनकम शो हो रही है, हमने जो भी एक्टिविटी हेल्ड की है अपने ड्यूरिंग ईयर में, जो भी सेल की है, उससे हमें रेवेन्यू यहाँ पर मिले हैं 2,50,000. ग्रॉस प्रॉफिट 61,000. इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक. Inventory at the end of the year, it is closing stock 10,000. So the formula for calculation inventory turnover ratio is cost of revenue from operation upon average inventory. So first of all we have to calculate average inventory. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है एक एवरेज जो हमारे पास इन्वेंट्री थी उसका टाइम हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा. First, calculation of cost of revenue from operation. How can we calculate? Cost of revenue from operation is equals to revenue from operation minus gross profit. कि हमने जो एक्टिविटी की है, जो उससे हमें इनकम मिली है, 2,50,000 रेवेन्यू जनरेट हो रही है, 61,000 की ग्रॉस प्रॉफिट है, इज इक्वल्स टू 1,89,000. सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 75,000 already has given in the question. Closing stock already has given upon 2 is equals to 42,500. Now we will calculate inventory turnover ratio is equals to total revenue, cost of revenue from operation. Find out 1,89,000 upon average inventory amount 42,500 is equals to 4.45 times. So inventory turnover ratio has repeated 4.45 times in during the year. Next question is, from the following information calculate inventory turnover ratio. Revenue from operation 4 lakh, average inventory 55,000, gross profit ratio 10%. Revenue from operation 4 lakh, gross profit will be calculated on the revenue from operation 10%. 4 lakh into 10 upon 100 is equals to 40,000 our gross profit. Cost of revenue from operation is equals to revenue from operation minus gross profit. 4 lakh minus 40,000 is equals to 3,60,000 our cost of revenue from operations. कि इसका मतलब है कि कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की इतनी जो कोस्ट है वो हमारी क्या हुई, हमने यहाँ पर यूज़ की है अपने एक्टिविटीज़ को हेल्ड करने के लिए. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equals to cost of revenue from operation upon average inventory. 3,60,000 upon 55,000 is equals to 6.55 times. So when the firm has comparison these times with in previous years and the current year, that will be comparison how many times this time has repeated or not. Second ratio, trade receivable turnover ratio. It expresses the relation between credit revenue from operation and trade receivable. कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, कि जितनी भी हमने अपने ड्यूरिंग ईयर में क्रेडिट
जो है सेल की है उनका हमें जो बिल रिसीवेबल हो रहे हैं वो प्रॉपर है या कम है या ज़्यादा है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो: ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वेयर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू ओपनिंग डेप्टर एंड बिल रिसीवेबल। ओपनिंग डेप्टर की जो हमें पैसे देने वाले हैं और बिल रिसीवेबल कितने हमें मिले हैं या कितने हमें मिलेंगे, प्लस क्लोजिंग डेप्टर एंड बिल रिसीवेबल। ये है ओपनिंग टाइम के कि ओपनिंग टाइम पे हमारे जो डेप्टर थे वो कितने के थे, बिल रिसीवेबल हमें ओपनिंग टाइम में कितने शो करे थे, एंड हाउ वी विल अचीव, और हमने कितने वहाँ पर अचीव किए एट द एंडिंग ऑफ द सेशन अपॉन 2। इट नीड टू बी नोटेड दैट डेप्टर शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लेकिन इन सब रिसीवेबल में से हम जो है अपने डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, इन सबको क्या कर देंगे, पहले ही डिडक्ट कर लेंगे। So according to turnover ratio, this ratio establishes a relationship between net credit revenue from operation and average trade receivable during the year. Net credit revenue from operation, we can be calculate the liquidity position of the firm depend upon the speed with which trade receivable are released. This ratio indicates the number of time and receivable are turned over and converted into cash in an accounting period. We can be calculate trade receivable turnover ratio with the help of number of days or month upon trade receivable or turnover ratio. Question is, calculate the trade receivable turnover ratio from the following information: total revenue from operation 4 lakh, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कि हमें टोटल रेवेन्यू ये रिसीव होने वाला है हुआ है 4 लाख। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जितने भी हमने यहाँ पर सेल किया है उससे हमें कैश रेवेन्यू 20% जो है वो रिसीव हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल एज एट 1/4/2014, तो ये हमारा जो है ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग का है 40,000, ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31st क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्लोजिंग जो है हमारे ट्रेड रिसीवेबल शो कर रहे हैं 1,20,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू, कि हमने टोटल रेवेन्यू कितने हमें यहाँ पर रिसीव हुए 4 लाख, लेकिन उसमें से सिर्फ जो कैश अमाउंट है वही हमें रिसीव हुई है, बाकी हमारे सारे क्या हैं, ट्रेड पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, हमें अभी ट्रेड रिसीव होने वाले हैं, हुए नहीं। 4 लाख का 20% केवल 80,000 रुपीज़ ही हमें कैश रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से रिसीव हुआ है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 की जो हमारे क्रेडिट रेवेन्यू है, अभी जो हमारे उधार में हमने सामान बेचा उससे हमें अमाउंट रिसीव होगी 3,20,000। नेक्स्ट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 1,20,000 अपॉन 2 इक्वल्स टू 80,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑल्सो हैज़ कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन 3,20,000 अपॉन 480 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ 4 टाइम्स में यहाँ पर रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, कि यहाँ पर अभी हमने ट्रेड रिसीवेबल की जो है कि यहाँ पर हमने चेक किया कि हमारे कितने रेवेन्यू कैश में हमें रिसीव हुए और कितने रेवेन्यू हमें क्रेडिट बेसिस हैं जो हमें रिसीव होने वाले हैं या अभी हुए हैं या नहीं हुए। ट्रेड पेबल में हमें कितने अमाउंट जो है वो पे करनी है अपनी क्रेडिट, हमने भी किसी से सामान खरीदा, तो यहाँ पर हमारी साइड से जो है वो ट्रेड पेबल का रेशो क्या है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल और एज ट्रेड पेबल अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेज। इट एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड पेबल, कि जो भी हमने क्रेडिट में परचेज की है उनके लिए हमारी परफॉर्मेंस क्या है ट्रेड पेबल के लिए, और हम किस तरह से उनकी पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो: टोटल पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, वेयर एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल्स टू ओपनिंग and bill payable plus closing creditor and bill payable upon 2. Average payment period, number of days,
number of month in a year upon trade payable turnover ratio. Significance: it reveal average payment period. Lower ratio means credit allowed by the supplier is for a long period, or it may reflect delayed payment to suppliers, which is not a very good policy. तो यहाँ पर अगर हमारा जो रेशो है वो बहुत लो होता है तो इसका मतलब हमारी जो पेमेंट है वो ऑन टाइम पर नहीं हो पा रही है. Calculate the trade payable turnover ratio from the following figure. Credit purchase during session 2014-15 12 lakh. Creditors on 1st for 2014. So these are the opening creditors. That time 3 lakh. बिल पेबल ऑन 1 अप्रैल हमें बिल पे करने थे 1 लाख के. क्रेडिटर्स हमारे जो है क्लोजिंग के हैं 1,30,000. बिल पेबल हमें क्लोजिंग पे करने हैं 70,000. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल. नेट क्रेडिट परचेज हमने कितने का नेट सामान यहाँ पर जो है वो परचेज किया है, तो वहाँ पर है नेट क्रेडिट. यहाँ पर 12 लाख का हमने यहाँ पर अमाउंट जो है वो परचेज किया है क्रेडिट में. क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग प्लस बिल पेबल इन द बिगिनिंग प्लस क्रेडिटर एट द एंड. चिल्ड्रन, ये जितने भी रेशो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं इनके लिए ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइड अ फॉर्मेट. उस फॉर्मेट में आपके पास फॉर्मूला, उनकी स्टैंडर्ड रेशो क्या होने चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर आइटम्स हमें ऐड करने हैं, डिडक्ट करने हैं, कैसे हमें उनको ऐड करना है, हाउ दी, और उसके साथ साथ की कितनी टर्म्स है जो ऐड करनी है, कौन सी टर्म्स है जो ऐड करनी है, फॉर्मूले हैं, मीनिंग है, स्टैंडर्ड है कि रेशो की स्टैंडर्ड रेशो कैसे शो होना चाहिए. तो ये जितनी भी डिटेल हैं इन सब डिटेल्स के लिए ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइड अ चार्ट. So that chart you will read carefully. Average trade payables is equals to 3 lakh, 1 lakh, 1,30,000. तो यहाँ पर देखिए 3 लाख के हमारे क्या हैं, 3 लाख के हमारे क्रेडिटर थे, 1 लाख के हमें बिल पे करने थे, और 1,30,000 की हमारे क्रेडिटर कहाँ थे, क्लोजिंग पे. ओपनिंग हमारे पास क्रेडिटर है, बिल पेबल हमारे पास करना है, और उसके साथ ही हमारे जो है क्लोजिंग है, और बिल पेबल हमारे क्लोजिंग. तो जितनी भी ओपनिंग और क्लोजिंग है हमारी लायबिलिटीज़ उन सबको हमें ऐड करना है अपॉन टू एवरेज निकालने के लिए. इक्वल्स टू 3 लाख. अब हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है 12/3 4 टाइम्स. इसका मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो 4 टाइम्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रीपेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड. Revenue from operation 8,75,000, creditors 90, bill receivable 48, bill payables 52, purchases 4,20,000, trade debtor 59,000. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट क्रेडिट हमारी कितनी हुई है यहाँ पर 8,75,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 59,000 ट्रेड डेप्टर प्लस 48,000 बिल रिसीवेबल प्लस डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8.18 times. This figure has not been divided by 2 in order to calculate average trade receivable as the figure of debtor and bill receivable in the beginning of the year are not available. तो यहाँ पर जब हम एवरेज हम तभी पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेशन की जो है अमाउंट गिवन होगी. लेकिन अगर एक है क्लोजिंग है या ओपनिंग है तो हम उसका एवरेज पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे. Next ratio is net assets or capital employed turnover ratio. It reflects relationship between revenue from operations and net asset employed in the business. Higher turnover means better activity and performance. It is calculated as follows. So according to net assets or capital employed turnover ratio, this ratio establishes a relationship between net revenue from operations and working capital of a company. This ratio indicates the number of time a unit of rupee invested in working capital produces revenue from operations sales. So this is ratio measures the rate of working capital utilization. A very high working capital turnover ratio may indicate over trading. तो यहाँ पर अगर रेशो बहुत हाई होता है तो इसका मतलब वो इंडिकेट करेगा कि ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर फर्म की तरफ से हो रही है.
Now the question is capital employed turnover ratio, which studies turnover of capital implies or net assets, is analyzed further by following two turnover ratio. Fixed asset turnover ratio, it is computed as follow. Fixed asset turnover ratio is equals to net revenue from operation upon net fixed asset. Second, working capital turnover ratio, it is calculated working capital net revenue from operation upon working capital. Now the question is, from the following information calculate net asset turnover and fixed asset turnover, working capital turnover. Preferences, share capital 4 lakh, equity share capital, general reserve, balance in statement profit loss, 15% debentures, 14% loan. These are the transactions. Revenue from operation for the year 2014-15 were 30 lakh. Now the solution is revenue from operation is equals to 30 lakh. कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. वी ऑलरेडी दिस टर्म हैज़ यूज इन गुडविल चैप्टर, कि गुडविल चैप्टर में भी हमने जो गुडविल को फाइंड करने के, गुडविल को कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड, वहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी यूज़ किया है. बस यहाँ पर चेंज ये है कि वो फॉर्म है और यहाँ पर हमें कंपनी में कैसे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है ये देखना है. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. 4 लाख हमारी शेयर कैपिटल है, 6 लाख हमारे रिजर्व और सरप्लस हैं, 1 लाख प्लस 3 लाख 18 लाख हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड. यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो कैपिटल हमारी इन्वेस्ट हुई है फर्म में. फिक्स एसेट 8 लाख माइनस 5 लाख, 8 लाख हमारे पास फिक्स एसेट निकालनी है तो 8 लाख हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट. तो ये हमारे पास फिक्स एसेट है. 2 लाख का हमारे पास देखिए और क्या है, 2 लाख का मोटर कार है हमारे पास एक 2 लाख की, फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख का. तो ये सब हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है. टोटल 16 लाख की हमारे पास फर्म के फिक्स एसेट है. वर्किंग कैपिटल कितनी है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज आर कॉल्ड कैपिटल. वर्किंग 4 लाख माइनस 2 इक्वल्स टू 2 लाख हमारे पास जो है वर्किंग कैपिटल फर्म के पास अपनी बची हुई है. नेट एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 30/18 इक्वल्स टू 1.67 टाइम. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 30 लाख अपॉन 16 लाख इक्वल्स टू 1.88 टाइम्स. थर्ड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 30 लाख अपॉन 2 लाख इक्वल्स टू 15 times. So children, next today I had explained third type of ratio, turnover ratio, activity ratio with all the types of numerical question. Children, practice for all these questions and also check the format. Take care. Goodbye.